Hello students, the part of business environment we have revised is the definition of business environment and the features of business environment. Now to continue further with the study or with the revision of this chapter, we have to start now from what is the need or what is the requirement of doing business environment, and why should a business know the business environment and what is the benefit of knowing the business environment. So to start with the part 2 of business environment, we have to start with the importance, needs, significance, benefits of understanding business environment. It is important for the management of a company to fully understand its business environment and develop plans and strategies to deal with the environmental forces. If a company is able to adapt to its environment, it will succeed in the long run. But if it fails, it might fail in the long run and disappear. So बिजनेस एनवायरनमेंट जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसी के बेसिस पे एक कंपनी अपने प्लान्स और स्ट्रेटजीज डेवलप करती है. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक से नहीं जानती, इट मीन्स उसके प्लान्स और स्ट्रेटजीज बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बनेंगे और बिजनेस फेल हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा. बट अगर उसने अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज किया और उसी के बेसिस पे अपने प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाए, तो कंपनी जो है लॉन्ग रन तक सक्सीड करेगी और उसकी अच्छी ग्रोथ होगी. तो व्हाई business environment should be known, or what are the benefits of knowing business environment? The first point here is your first mover advantage or helps in identification of opportunities. Awareness of environment helps an enterprise to take advantage of early opportunities instead of losing them to competitors. Opportunities are the positive or favorable external factors that are likely to help a firm increase its sales and profits. If a business is able to identify a forthcoming opportunity and use it to the best of its advantage, it is said to have made the first mover advantage. तो क्या है, अगर बिजनेस अपने फोर्थकमिंग अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से पहचान लेती है और उसका इस्तेमाल अपने एडवांटेज या अपने बेनिफिट और अपनी सेल प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए करती है, तो इसको हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट का अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है ताकि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बिजनेस ले और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो ग्रैब करे, रादर उसको कंपटीटर्स को लूज़ करने की. तो अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि उसकी सेल को, उसके प्रॉफिट्स को, उसकी रेपुटेशन को, उसकी ग्रोथ को जो है इफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, टाटा नैनो वॉज द फर्स्ट कार इन द स्मॉल कार सेगमेंट, Pepperfry being the first online furniture. Same way, the very first car in the economic class was being launched by the Maruti. तो ये सब क्या हुआ, उन्होंने देखा फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज थी, अपने कंपटीटर पे लूज करने की जगह उन्होंने ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लिया. द सेकेंड पॉइंट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल और हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स. Environmental awareness serves as an early warning signal. If business threats are identified on time by the business, it can help the manager to avoid severe consequences or losses. The knowledge of the approaching threats enables the business managers to face it in the best possible manner by deciding upon the best course of action in advance. तो क्या है अर्ली वार्निंग सिग्नल? क्या है कि जो भी बिजनेस को जो उनके थ्रेट्स हैं, राइट, उन थ्रेट्स को पहले से ही पहचान के बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना ताकि कम से कम लॉस हो या फिर लॉस को वो अवॉइड कर सके. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो और टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स ऑफ द बिजनेस ऑन टाइम. थर्ड वन, okay, examples for this is an Indian firm finds out that an MNC is entering in Indian market with new substitutes. On the basis of this information, the company can improve the quality of its product, reduce cost of production, engage in aggressive advertisement campaigns, etc. Indian company जिसको पता चलता है कि MNC एंटर कर रही है मार्केट में, उसने
उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, और एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट यानी कि लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च करने में, ताकि वो एमएनसी के साथ कंपटीशन में स्टैंड कर सके, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहे, उसके कस्टमर्स इंटैक्ट रहें. The third point here is coping with rapid changes. A keen watch on trends in environment helps a firm management to cope with rapid changes in technology, company competition, government policies, and changing needs of customers. एक कीन वॉच जो है ट्रेंड्स एनवायरनमेंट के देखने में मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि वो कोप अप कर सके जो सराउंडिंग के चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में, कंपनी के कंपटीशन में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में या कस्टमर्स की नीड में, उसके बेसिस पे अपने आप को कोप अप कर सके और उन चेंजेस के साथ एडजस्ट कर सके. लाइकली Zoom provided a video conferencing during COVID pandemic in 2020. Zoom ने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था पेंडेमिक 2020 में, जब ज़रूरत थी कंपनीज को कि ऑनलाइन वर्क कर सके उनके वर्कर्स, और स्कूल में एक प्लेटफॉर्म मिल सके कि बच्चे घर बैठ के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके. नेक्स्ट इज formulation of strategies and policy. Environment monitoring provides relevant information about the business environment. Such information serves as the basis for planning and policy making. आपका एनवायरनमेंट जो मॉनिटरिंग है, लगातार उसको ऑब्जर्व करना, जो एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो है कंपनी को और फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को उसकी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में हेल्प आउट करती है. फॉर एग्जाम्पल, लीडिंग कंपनीज लाइक रिलायंस, एयरटेल, हीरो, बजाज, आईटीसी एटसेट्रा हैव एंगेज्ड एक्सपर्ट्स टू मॉनिटर ट्रेंड्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट and use the input provided by the experts in making strategies. तो इनके experts हमेशा ही वो अपने एम्प्लॉय करके रखते हैं ताकि वो मॉनिटर करते रहे ट्रेंड्स का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्रिएट हो रहे हैं, और उससे मिली हुई जो इंफॉर्मेशन है, इनपुट है, उसका यूज़ वो अपने स्ट्रेटजी बनाने में करते हैं. नेक्स्ट इज योर पब्लिक इमेज. अ बिजनेस कैन इम्प्रूव इट्स इमेज बाय शोइंग that it is sensitive and responsive to the needs of the public. एक बिजनेस अपने आप की इमेज अच्छे से इंप्रूव कर सकता है, एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में, पब्लिक में, जब वो पब्लिक की नीड्स के लिए सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव होता है. मतलब उनकी समझता है नीड्स को और वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है, वैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जो कि पब्लिक की नीड है, डिमांड है. Environmental understanding enables business firms to be responsive to their requirements. और ये requirements और यहाँ पूरी करना और उसके लिए responsive होना तभी possible है जबकि वो अपने external environment को समझता है. For example, Samsung keeps doing innovations in their mobiles to make the life of their customers easier, like flip-on mobiles, waterproof, translator facilities, etc. सैमसंग जो है वो इनोवेशंस करता रहता है मोबाइल में, बिकॉज वो अपना जो है एनवायरमेंटल जो उनकी मॉनिटरिंग है, इट इज़ वेरी इंटैक्ट. दे नो कस्टमर क्या चाहते हैं, इसलिए वो टाइम टू टाइम अपने मोबाइल्स में इनोवेशंस करता रहता है, लाइकली फ्लिप ऑन मोबाइल्स, वाटर प्रूफ मोबाइल्स, ट्रांसलेटर फैसिलिटी इन देयर मोबाइल्स, सो द पर्सन कैन ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू द अदर. Next is helps in continuous learning. Strategy formulation is a continuous process that involves keeping in touch with the external environment. Thus, managers continue to scan environment changes and act on the basis of such information to ensure survival and growth of their companies. Strategy formulation एक continuous process है जिससे कि external environment के साथ हमेशा management टच में रहता है. मैनेजर्स जो है स्कैन करते रहते हैं एनवायरनमेंट को ऑन द कंटिन्यूशन बेसिस ताकि जो उनकी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट रहे और उससे वो बिजनेस को सर्वाइव और ग्रोथ करने में मदद करे. नाउ एनवायरनमेंट स्कैनिंग. सो नाउ वी अंडरस्टैंड, अब हम समझेंगे एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है. एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग
यानी कि उसको जानना समझना। बट स्कैनिंग जब बोल रहे हैं हम, तो व्हाट स्कैनिंग एग्जैक्टली इज? स्कैन मतलब एक डीप स्टडी हो गया। व्हाट इज केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। केयरफुल मॉनिटरिंग है, यानी कि लगातार आप मॉनिटर कर रहे हैं बहुत ही केयरफुल वे में, ताकि अर्ली साइंस जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के हैं बिजनेस को, इन द वेरी फर्स्ट स्टेज द ऑर्गेनाइजेशन कैन कम टू नो, ताकि उनका इस्तेमाल वो उसकी करंट और फ्यूचर प्लान्स के बनाने में कर सकें। Why it is important? It is important because with the help of environmental scanning, an enterprise can understand the impact of different events, trends, issues, and stakeholders' expectations on its business operations and strategic decisions. Environment scanning इसलिए ज़रूरी है ताकि जो बिजनेसमैन है वो जान सके उनके डिफरेंट इवेंट्स का, उनके ट्रेंड्स का, उनके इश्यूज का, उनके स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस का बिजनेस के ऑपरेशंस या उनकी स्ट्रेटजी डिसीजंस पर क्या असर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मार्टफोन कंपनी ऑब्जर्व्स अ ग्रोइंग कंज्यूमर ट्रेंड टुवर्ड्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑन ई-वेस्ट। Through environmental scanning, the company identifies an opportunity to launch a new range of sustainable smartphones using recyclable materials while also preparing to meet regulatory requirements. This helps a company stay competitive and compliant in a changing environment. एक स्मार्टफोन कंपनी ऑब्जर्व करती है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो their taste और their trend being changes कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी ई वेस्ट की तरफ स्ट्रिक्ट हो गया है। अपने एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू कंपनी ने आइडेंटिफाई की अपॉर्चुनिटीज़ कि वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करें जो सस्टेनेबल स्मार्टफोन के रेंज प्रोवाइड करें कस्टमर्स को, यूजिंग रिसाइकलेबल मटेरियल, और यूज़ करके किसको? रिसाइकलेबल मटेरियल को। और जब वो रिसाइकलेबल मटेरियल यूज़ कर रही है तो वो क्या है, रेगुलेटरी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको भी अकम्प्लिश कर रही है। सो इससे क्या होगा, कंपनी कंपिटिटिव और कंप्लायंट रहेगी अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में, लॉन्ग रन तक एग्जिस्ट करेगी और कंपटीशन को फेस कर सकती है, क्योंकि वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रही है। Now, next is what are the dimensions of business environment? Dimension क्या है कि कौन कौन से इसके दो डायमेंशंस आपके हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट के, एक है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। एज यू ऑल नो चिल्ड्रन, micro and macro word you already have heard. Micro is minute, smaller, and macro means larger and which includes everything. So in the same sense we are using here the meaning micro और macro उसी सेंस में यूज हो रहा है, पर यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज को फर्म्स के लिए यूज कर रहे हैं। जब कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री या इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज को कोई चीज़ इफेक्ट करती है तो वो क्या होता है, माइक्रो लेवल एनवायरनमेंट हो गया। और जब सारी ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्ट होती हैं किसी एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से, तो उसे हम कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट करता है और मैक्रो एनवायरनमेंट सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट करता है। सो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या हो गया, स्पेसिफिक, और मैक्रो हो गया आपका जनरल एनवायरनमेंट। सो माइक्रो एनवायरनमेंट इट रेफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस which exerts direct influence on a specific or individual business enterprise. Such forces interact with the enterprise and influence its policies and strategies. तो क्या है, वो इंटरेक्ट कर रहा है इंटरप्राइज के साथ और उसकी पॉलिसीज और स्ट्रेटजी को इफेक्ट करता है, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सेक्शन क्योंकि डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो कॉल्ड टू बी टास्क एनवायरनमेंट क्योंकि उसकी वर्किंग को इफेक्ट करता है। माइक्रो एनवायरनमेंट के दो फैक्टर्स हैं आपके, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इम्पैक्ट करते हैं और एक्सटर्नल जो ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से इम्पैक्ट करते हैं, इसे हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। Macro environment, on the other hand, refers to the general environment or remote environment within which a business firm and forces in its micro environment operate.
विद इन विच अ बिजनेस फर्म, जिसमें माइक्रो एनवायरनमेंट जनरल या रिमोट कह रहे हैं, और इसको हम इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर रहा है, इम्पैक्ट इनडायरेक्टली करता है. सो दिस इज व्हाट जनरल, रिमोट और इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट, जो कि बिजनेस फर्म और उसके फोर्सेस है जो माइक्रो एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं उसको जो है इम्पैक्ट कर रहा है. देयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस जो है डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कंपनी के ऑपरेशंस और वर्किंग को. अ कंपनी डज नॉट डायरेक्टली और रेगुलरली इंटरेक्ट विद द मैक्रो एनवायरनमेंट. तो कंपनी जो है डायरेक्टली और रेगुलर वे पे इससे माइक्रो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं करती है. फर्दर हम डिफाइन करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट. तो हमने इंटरनल एनवायरनमेंट किसका हिस्सा है, अभी हमने पढ़ा. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, एक फैक्टर है. सो व्हाट इज इंटरनल? द कंडीशंस, इवेंट्स एंड फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. They influence its activities and behavior of the employees. These are controllable factors. Factors that are frequently considered part of the internal environment includes organization's mission, corporate culture, top management, policies, leadership style, company's image and the organizational structure. तो conditions जो हैं, events and factors जो कि organization के अंदर ही है, ये उसकी एक्टिविटीज और बिहेवियर को इसके एम्प्लॉयज के एक्टिविटीज और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. कंट्रोलेबल फैक्टर हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं, और इसमें जनरली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, कल्चर है, मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, लीडरशिप स्टाइल है, कंपनी की इमेज है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है. नाउ हम अब देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी किसका, माइक्रो एनवायरनमेंट का ही एक फैक्टर है. सो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. कौन है ये? वो इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैं और एजेंसीज हैं with which a particular business organization comes into direct and frequent contact in the course of its functioning. वो आपकी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, एजेंसीज भी हो सकती हैं, जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली और फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट में आते हैं उनके फंक्शनिंग के कोर्स में. यानी कि जब वो वर्किंग कर रहे हैं, जब उनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब बिजनेस अपना जो है फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. सो हमने क्या देखा कि इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस के अंदर है, एक्सटर्नल बिजनेस के बाहर है, और डायरेक्टली फ्रीक्वेंटली जो आपके बिजनेस के कांटेक्ट में आ रहा है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये आपके जो है बाहरी संस्थाएं हम कह सकते हैं. These individuals और groups are also known as stakeholders. इनको हम stakeholders क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका फाइनेंशियल स्टेक होता है कंपनी की वर्किंग एंड परफॉर्मेंस में, राइट. They exist and operate in the organization's immediate operating environment. तो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के इमीडिएट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि फंक्शनिंग पार्ट में, उसके वर्किंग पार्ट में वो आपका जो है एग्जिस्ट करता है. सिंस दे एग्जिस्ट आउटसाइड द एंटरप्राइज दे आर अनकंट्रोलेबल. तो हमारे इंटरनल फैक्टर कंट्रोलेबल हैं और एक्सटर्नल फैक्टर अनकंट्रोलेबल हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, और बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स या ग्रुप को या एजेंसीज को ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती. सो क्या कौन इंक्लूडेड है, क्या एग्जांपल है इनके? इट इंक्लूड्स कस्टमर्स, कंपटीटर्स, फाइनेंसर्स, suppliers, market intermediaries, public and regulators. Now, what is SWOT analysis? SWOT, people might have heard about this. SWOT is the acronym for the S strength, W weaknesses, O opportunities, and T threats. Opportunity threats word we have already used earlier. So SWOT is the strength, weaknesses, opportunities and threat. एक इंसान की स्ट्रेंथ क्या है, एक इंसान की वीकनेसेस क्या है, एक पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं.
तो पर्सनल लेवल पे भी हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं स्वॉट एनालिसिस की, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्वॉट एनालिसिस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक बिजनेस एंटरप्राइज की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, और उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी कि कहाँ वो स्ट्रांग है, किस पार्ट में उसकी स्ट्रेंथ है, किस पार्ट में वो वीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि उसे बाहर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो अपने आप को एक्सेल कर सकती है, जहां अपनी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ा सकती है, और क्या थ्रेट्स हैं कंपटीटर से या गवर्नमेंट से या कस्टमर की तरफ से, क्या थ्रेट्स उसको हो सकते हैं, ये उसके थ्रेट्स हो गए। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जब हम बात करते हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट में होगा, राइट, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मिलते हैं। स्वॉट का जो मॉडिफाइड वर्जन उसको हम टॉस भी बोलते हैं, यानी कि टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस एंड एस फॉर स्ट्रेंथ। Strength or weaknesses can be identified by analyzing the internal environment, and opportunities and threats can be identified by analyzing the external environment. So strength क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, क्योंकि वो इंटरनल एनवायरनमेंट में है तो उसकी क्या है, इनहेरेंट, क्योंकि वो काम कर रहा है इतने ऑर्गेनाइजेशन सालों से, तो उसके इंटरनल हो गया, इनहेरेंट कैपेबिलिटीज या इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं रिस्पेक्टिवली उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। इट इज एन इनहेरेंट capability of a company which it can use to gain strategic advantage over its competitors is called to be its strength. इनहेरेंट कैपेबिलिटीज हैं कंपनी की जो, जिस कारण से वो अपने कंपटीटर पे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेता है, तो उसे कहते हैं उसकी स्ट्रेंथ। तो हम HUL का अगर निकालें स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके कंपटीटर से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका ब्रांड पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, कस्टमर्स अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी है, और रिसर्च डेवलपमेंट एबिलिटी जो है उनकी उनके कंपटीटर से ज़्यादा बढ़िया है। तो ये HUL की स्ट्रेंथ्स है। वीकनेसेस क्या है, मैंने क्या बोला आपको, स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्योंकि इंटरनल है तो इनहेरिटेड होती हैं ये। इट इज एन इनहेरेंट limitation or constraint of a company which creates strategic disadvantage for it, against its or over its competitors. For example, increasing cost of input, complex supply chain, dispersed manufacturing location, limited success in changing the eating habits of people are weaknesses of Hindustan Unilever Limited. अब inherent limitation या constraint है जिस कारण से उसको उनके कंपटीटर के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज मिलता है। वो क्या है, वो उनकी वीकनेसेस होती हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि HUL का हमने एग्जांपल यहाँ लिया फिर से कि उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट उसके एक अपोनेंट से ज़्यादा है, सप्लाई चेन उनका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस डिस्पर्स है, अलग अलग बहुत जगह फैली हुई है, और लोगों की ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करी पर नहीं कर पाए। दैट इज द वीकनेसेस ऑफ HUL. नाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स मैंने बताया जैसे कि वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, बाहरी एनवायरनमेंट में है, तो वो क्या है, उसकी फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस हुई रिस्पेक्टिवली। अपॉर्चुनिटीज आर द फेवरेबल एंड थ्रेट्स आर अनफेवरेबल। So opportunities क्या है? Opportunity is a favorable condition in the company's external environment which enables it to strengthen its position. तो क्या है, favorable चीज है जिससे उसकी position strengthen होती है। Likely HUL की opportunities क्या है, क्योंकि उसके पास एक प्रोडक्ट की जो है ब्रांड इक्विटी उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो उस कारण से वो इजिली जो है इंक्रीज्ड पेनिट्रेशन स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में उन्होंने जो है अपना जो सप्लाई, अपनी जो पेनिट्रेशन बढ़ाया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, और बहुत सारी कैटेगरीज में जो उनके प्रोडक्ट्स का जो है उनकी एंट्री हुई है। अपग्रेडिंग कंज्यूमर्स थ्रू इनोवेशंस टू न्यू लेवल ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। तो अपग्रेड किया कस्टमर्स को उन्होंने, नए तरह के इनोवेशंस किए क्वालिटीज में अपनी और अपनी परफॉर्मेंस में, और ग्रोइंग कंजम्पशन इन एंड आउट ऑफ होम, और उनका कंजम्पशन जो है कंट्री में भी बढ़ा है और कंट्री के बाहर भी बढ़ा है। तो ये कंपनी के लिए, HUL के लिए अपॉर्चुनिटीज हुई
कि उन्हें बाहर जो मिल रहा, जो भी उन्हें ये सब कैटेगरीज में मिला, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की सेल को बाहर बढ़ाया, चाहे वो आपका रूरल एरिया रहा या दूसरी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स रहे जहां उन्होंने कंज्यूमर्स जो ऑलरेडी थे उनके प्रोडक्ट को अपग्रेड किया, या उन्होंने होम कंट्री और फॉरेन कंट्री दोनों में ही अपनी सप्लाई को इंक्रीज किया. नाउ थ्रेट्स. Threat is an unfavorable condition in the company's external environment which causes a damage or risk to its position. तो क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो उसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिल रही है जिसके कारण उसके पोजीशन को रिस्क हो सकता है या उसको कोई डैमेज हो सकता है, उसकी सेल कम हो सकती है, उसका लॉसेस हो सकते हैं उसको, राइट, उसके प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं. तो HUL के जो थ्रेट्स हैं क्या है, लो प्राइस कंपटीशन. उसका लो प्राइस कंपटीशन शुरू हो गया. पतंजलि आयुर्वेदा आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस एज कंपेयर टू योर HUL. देन स्पूरियस और काउंटरफीट प्रोडक्ट्स इन द रूरल एरिया, सस्ते और घटिया किस्म के जो प्रोडक्ट्स रूरल एरिया में बेचे जाते हैं, तो वहाँ रूरल एरिया में उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है रादर HUL के प्रोडक्ट्स की. चेंजेस इन फिजिकल बेनिफिट्स. तो फिजिकल बेनिफिट्स चेंज हो गए, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहे जो कि गवर्नमेंट कहीं फिजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती थी. अनफेवरेबल प्राइसेस इन ऑयल्स आर सम थ्रेट्स टू HUL, right? So I'm concluding the revision of today till here. Now we'll continue our revision part now with the rest of the chapter. The things we need to continue, I want to know from you people which chapters you want to study first. So I'll send you I'll make the videos on those chapters first. Before leaving, I would like you people to just like, share and subscribe, and share with those with whom you are contact with, so that the other people or other friends of yours also can get the benefit of the revision. Thank you, students.